Good morning, Jasleen. Good morning, sir. Jasleen, you got the link from your group itself? Sir, which link? ये जो क्लास वाला लिंक जो था. Yes, sir. From group. Class teacher has sent the whole link to the group. आपका सेक्शन ए है ना? Yes, sir. Yes, I request everyone to keep your camera in the active state. पवनदीप, प्रियांशी, मुस्कान, अरमान, भव्या. So today we have very important topic. Like this is the topic that we have: import and export of data. So yesterday I basically introduced this topic, and today we will go into the details of this one. And yesterday I also told you that this topic is very important from the project development also. Yes. Why it is important from the project development is that, when we are developing a project, so at the back end we need some database and we need to connect our Python with database. So that's why the connectivity becomes very, very important. So first of all, we need to go into the details that what are the softwares that we need. So Python Jupyter Notebook we are using for front end, and for back end we are using MySQL. So these two softwares that we need. उसमें जो important चीज है मैं आपको बताई जाता हूँ, that is you keep today's copy pen with you. A very, very important lecture. And in this lecture you will find maximum variables to be considered when we are going through the connectivity. तो पहले I will show you the program. You just have a look at the program. This is the program. तो इस program के अंदर you are looking at this mysql.connector. So this is the package and module that we are using here in this particular program. तो जैसे मैं अपनी Jupyter notebook यूज कर रहा था तो इसके अंदर ये पैकेज अवेलेबल नहीं था. So this package you need to install first. ठीक है, ये जो mysql.connector package है that you need to install first on your system. Maybe on some of the Jupyter notebook this is available, but on my Jupyter notebook this was not available. तो एक तो पॉइंट ये नोट करना है आप लोगों ने, दैट इज अगर आपने किसी ने चेक करना हो कि मेरे सिस्टम के ऊपर ये पैकेज है या नहीं है तो कैसे चेक करोगे? हाउ यू विल चेक दैट वेदर दिस पैकेज इज अवेलेबल ऑन योर सिस्टम और नॉट? ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, दैट इज हाउ यू विल चेक इट आउट. ठीक है, जैसे मैंने इससे पहले मैंने चेक किया था अपने सिस्टम पे, जैसे इंपोर्ट पांडास मेरे सिस्टम पे है. ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूं इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर. अब मैंने चेक इसको करना कि ये अवेलेबल है मेरे सिस्टम पे या नहीं. सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आप जस्ट इसके आगे एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दो.
ठीक है जी। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट तभी चलेगी जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, नंबर 2 पे जो स्टेटमेंट, ठीक है। सो यू जस्ट रन दिस वन, because on my system now it is installed, so that's why I am getting the output. अगर ये आपके सिस्टम पे ये पैकेज नहीं होगा तो आपके सिस्टम पे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगी। So I think you got the idea that how to check whether this particular package is available on your system or not. अब सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इसके लिए कमांड है pip install, pip install, and then you have to type the package mysql dot connector. अब ये क्वेश्चन ये होता है कि जैसे इस क्लास से पहले जस्ट 5 मिनट्स बिफोर आई हैव इंस्टॉल्ड दिस पैकेज। तो ये लास्ट ईयर ये हमने ये एक एक्टिविटी की थी क्लास के अंदर ना, जिसके अंदर आपको पता है कि आप लोगों के सभी के सिस्टम के ऊपर जिन्होंने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल की हुई है उन सभी के सिस्टम पे एक स्पाइडर सॉफ्टवेयर है। स्पाइडर पता किसी को? स्पाइडर जैसे जुपिटर नोटबुक है ऐसे स्पाइडर है, ठीक है। तो आई विल शो यू दैट विंडो हाउ आई हैव डन दिस। जैसे आप नीचे सर्च बार में आप जुपिटर टाइप करते हो ना, वैसे वहां पे आपने टाइप करना है स्पाइडर, और वहां पे स्पाइडर वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज स्पाइडर एनाकोंडा 3। जस्ट क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। थोड़ा कॉपी पेन का यूज कर लेना इस लेक्चर में। Now the second point I am discussing now, how to install the package. Jupyter notebook में भी ये इंस्टॉल हो जाता है, but no, because of no मेरे पास 4-5 मिनट थे, so I forget one method and then I use the spider method. There are multiple ways are there for installation. So now this Jupyter notebook is taking a bit time to open. So when it opens, I will tell you that is ज्यादा सॉफ्टवेयर खोलने से the system gets a bit on the slower side. It becomes a bit slow. So ठीक है। So in the meanwhile जब तक ये open होती है, we move to the next point, and I think so that is it is open now. Yes. So now I'll be able to share that screen with you. Sorry for the wait. So now it's ready. ठीक है। तो ये एक और इंटरफेस अवेलेबल है। सो यस अजय प्रताप, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। तो बेटा जैसे हमारे पास जुपिटर नोटबुक है, वैसे हमारे पास ये स्पाइडर है। आप स्पाइडर में भी प्रोग्राम बना सकते हो सेम वे में। सो इसकी लुक थोड़ी डिफरेंट है, बट यहाँ पे हम प्रोग्राम टाइप करते हैं और जो आप रन करते हो यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। यहाँ लाइक आई टाइप हियर समथिंग, कुछ ट्राई करके देखते हैं इसमें। लाइक लेट्स से x is equal to let's say 30. You just run this one, and yes. तो ये देखो यहाँ पे ये 30 आंसर आ रहा है, 30। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करके 30 से लेट से 150 कर दी, 150।
सो आई रन दिस वन. सो यू आर सीइंग दिस, ये 150 आंसर आ रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी. दिस इज, वी विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ दिस स्पाइडर नोटबुक. मेरा क्वेश्चन ये था कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है. तो यहाँ पे आपने कमांड लिखनी है, इंस्टॉल पिप इंस्टॉल. पिप इंस्टॉल, ये इसका कंसोल व्यू है. एंड यहाँ पे आपने टाइप करना है mysql डॉट कनेक्टर. बस दैट्स ऑल. इसके कंसोल व्यू में जाके आपने टाइप करना है पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस जो भी पैकेज आपने डाउनलोड करना है. मेरे पैकेज का नाम है mysql डॉट कनेक्टर इज माई मॉड्यूल. तो जस्ट यू हैव टू एंटर हियर and it depends upon your internet connection. Within few seconds this package will get installed here. और यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा. ठीक है जी. सो अभी तक हमने एक दो क्वेश्चन इसके टच किए हैं. दैट इज व्हाट आर दी सॉफ्टवेयर्स वी रिक्वायर. मैंने आपको बताया फ्रंट एंड पे हमें पाइथन चाहिए, बैक एंड पे हमें MySQL चाहिए. और 2 नंबर पे हमने डिस्कस किया कि हाउ टू इंस्टॉल दिस पैकेज. तो इसके लिए मैंने स्पाइडर यूज किया है. ये जुपिटर से भी इंस्टॉल हो जाता है. सो प्रेजेंटली आई हैव फॉरगेट हाउ टू इंस्टॉल इट फ्रॉम द जुपिटर नोटबुक, बट आई हैव डन इट फ्रॉम द जुपिटर नोटबुक आल्सो. और ये जो हमारे पास एक कमांड लाइन इंटरफेस होता है, so now I am showing you the, जहां से हम कमांड्स टाइप करते हैं और रन करते हैं. जैसे यहां से भी ये इंस्टॉल हो जाता है. ठीक है. इसमें करना क्या होता है, जहां पे आपकी पाइथन इंस्टॉल्ड है, जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है CD अन्नाकोंडा 3, ये इस नाम का फोल्डर बन जाता है. सो इसका एग्जैक्ट नेम है, डबल N नहीं है इसमें, CDANACONDA3. तो यहां जाके भी ये कमांड पिप इंस्टॉल यहाँ पे भी आप रन कर सकते हो. सो दीज आर द 2 मैकेनिज्म आर अवेलेबल विद अस. ठीक है जी. और जैसे अभी मैं आपको जुपिटर ये स्पाइडर वाली जो इंटरफेस दिखा रहा था, यहाँ पे ये मैसेज आ गया नीचे, यू नीड टू रीस्टार्ट एंड रिक्वायर्ड सेटिस्फाइड. तो ये पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो गया. दिस पैकेज हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन माय दिस वन. requirement already satisfied. So this package is already there on my system, so that's why it is saying requirement already satisfied. तो ये था हमारे पास स्टेप नंबर 2. so now we move to the जो आज का हमारा काम था, that is, so this is the 4 and 5 line code I have written on my screen. Clear? So this is the program that is किसके लिए है ये, you can say this is for database connectivity के लिए. ये देखो आप, पहली 2 लाइंस तो इंपोर्ट ही है इसमें. एक 3rd लाइन है, 4th लाइन में हमने कनेक्शन प्रिंट किया है, 5th लाइन में हमने क्वेरी को रन किया है, और 6th लाइन में हमने रिजल्ट को प्रिंट किया है. सो सिर्फ 6 लाइंस ऑफ कोड वी हैव. इसमें से ये 2 लाइंस तो ओल्डर ही हैं. वी हैव टू इंपोर्ट pandas पैकेज एंड वी हैव टू इंपोर्ट this new package mysql.connect. now we move to the 3rd line of code. this is the most important line. ठीक है जी. इसके अंदर क्या है, हमने ये con जो वेरिएबल है, this variable is for connection creating. डाटाबेस और पाइथन में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एक वेरिएबल मैंने यूज किया है, उस वेरिएबल का नाम है con. अब इसके अंदर क्या है, mysql.connector, ये तो मेरा पैकेज है, ये मेरा मॉड्यूल है, और उसके अंदर नंबर 3 पे ये मेरा फंक्शन है, कनेक्ट फंक्शन यूज कर रहा हूं. अब इस कनेक्ट फंक्शन के अंदर आई हैव 4 पैरामीटर्स, 1 2 3 4. पहला पैरामीटर है होस्ट, दूसरा पैरामीटर है यूजर, तीसरा पैरामीटर है पासवर्ड, और 4th पैरामीटर है डाटाबेस. ठीक है जी.
तो इसको अंडरस्टैंड कर लो, इसकी वीडियो तो बन जाएगी आप लोगों के पास। ठीक है, सबसे पहले है होस्ट। तो होस्ट सभी लोगों ने यही मेंशन करना है, लोकल होस्ट। नंबर 2 पे आ गया हमारे पास यूजर। तो यूजर ये कौन सा है? ये यूजर है जो MySQL का यूजर है। जब आपने MySQL इंस्टॉल की तो MySQL का यूजर क्या था, वो यूजर आपने मेंशन करना है यहाँ पे। और जब मैंने अपनी MySQL इंस्टॉल की, मैंने उसके केस में कोई भी पासवर्ड नहीं दिया। तो अगर आपने अपने सिस्टम पे पासवर्ड दिया है तो आपको यहाँ पे वो पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। आई हैव नॉट पुट एनी पासवर्ड ऑन माई डाटाबेस, तो दैट्स वाई ये ब्लैंक ही है। और फोर्थ पैरामीटर है मेरे पास डाटाबेस। तो जो भी डाटाबेस आपने MySQL में क्रिएट किया है उस डाटाबेस का नाम बताना। ये 4 पैरामीटर है मेरे पास। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा MySQL भी दिखा दूं साथ साथ में, ये है MySQL। ठीक है, तो इसको एक बार मैं क्विट कर देता हूं, आपको स्टार्ट से दिखा देता हूं सो दैट you get all these steps. So I just move to the my command prompt. ठीक है, so I am sharing how to open the MySQL on your system. So this is my command prompt. तो yes, अजय प्रताप व्यू हो रहा है ये? यस सर, हो रहा है। ठीक है, तो आई विल टाइप हियर cd/। तो ये जो हमारी MySQL है वो XAMPP फोल्डर में है। सो आई विल टाइप हियर cd XAMPP। मैंने आपको बोला था ये XAMPP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना आप लोग। देन cd MySQL, cd bin, देन MySQL -u। ये -u होता है यूजर नेम मेंशन करने के लिए। -u इज फॉर, ये हम शेल में जब हम कमांड टाइप करते हैं तो ऐसे ही टाइप करते हैं, स्पेस जो यूजर नेम है। अब मेरा यूजर नेम है रूट, मैंने पासवर्ड कोई भी नहीं रखा हुआ। अगर आपने पासवर्ड रखा है तो उसके लिए पासवर्ड का भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके लिए /p है या कुछ ऐसा वर्ड होता है उसके लिए। बट आई हैव नॉट सेट पासवर्ड ऑन MySQL एंड आई आल्सो रेकमेंड यू कि आप कोई भी पासवर्ड ना रखना इंस्टॉलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो अब मेरे पास ये मैसेज आया कि अब मेरी कनेक्टिविटी हो गई है, अब मेरी डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो गई है। सबसे पहली कमांड जो होती है दैट इज शो डाटाबेसेस। तो जितने भी मेरे सिस्टम के ऊपर डाटाबेसेस हैं वो सारे आ गए यहाँ। अब मैं टेस्ट डाटाबेस को यूज करूंगा, यूज टेस्ट, एंटर। तो अगर मैं इसके अंदर सारे टेबल्स देखना चाहता हूं तो शो टेबल्स कमांड है उसके लिए। सो बाय दिस यू कैन सी दैट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए टेबल जिसका नाम है एम्प्लॉय। अब मैं उसके कंटेंट्स देखना चाहता हूं, सो यू ऑलरेडी नो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम employee. So these are the contents of my table. So now coming back to the program. ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ एक ही लाइन एक्सप्लेन की है। दिस इज द लाइन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। मैं फिर से बता रहा हूं इसके बारे में। con क्या है? दिस इज द वेरिएबल। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये वेरिएबल होता है एंड दिस वेरिएबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद मैंने MySQL पैकेज यूज किया, कनेक्टर मॉड्यूल यूज किया, कनेक्ट नाम का मेथड है जिसके 4 पैरामीटर्स हैं। होस्ट में मैंने लोकल होस्ट डाल दिया। आप लोगों ने भी ये लिखना है। यूजर, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका यूजर नेम रूट ही होता है MySQL में, जब हम XAMPP के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। पासवर्ड मैंने उसका कोई भी नहीं रखा एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज उसका कोई पासवर्ड ना रखो, बाद में आप भूल जाते हो तो देन दैट क्रिएट्स अनदर बॉटलनेक फॉर अस। और नंबर 4 पे जो भी डाटाबेस मैंने अभी आपको दिखाया अभी उधर, वहां पे मैंने टेस्ट डाटाबेस यूज कर रहा हूं, तो वही डाटाबेस का नाम आपने यहाँ पे यूज करना है जो डाटाबेस आपने MySQL में यूज किया हुआ है। अगर आप कोई और डाटाबेस मेंशन करोगे तो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा, आपको कुछ भी आउटपुट दिखाई नहीं देगी। फिर देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रिंट con। तो ये जो कनेक्शन है, ये देखो आप, ये कनेक्शन क्रिएट हो गया है। इसका हमें इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बट इसको
प्रिंट करवाने के लिए ये पैकेज है, ये मॉड्यूल है, क्लियर। एंड दिस इज अबाउट द कनेक्शन डिटेल्स। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इज एट दिस, इट मे बी एट दिस मेमोरी लोकेशन। तो हमें इससे कोई बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। ठीक है जी। नाउ आई मूव टू दिस फिफ्थ लाइन। ये फिफ्थ लाइन है, ठीक है। अब फिफ्थ लाइन में क्या है, मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है, एम्प्लॉय वेरिएबल क्रिएट किया है। अब मैंने क्या किया, पांडास पैकेज में से मैंने ये एक पैकेज यूज किया, इस एक मेथड यूज किया, रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी। ये मेथड है, ये एज इट इज ही लिखना है, इसमें मैं और आप कोई इसका सिंटैक्स चेंज नहीं कर सकते। तो इसके फर्स्ट पैरामीटर में मैंने एक क्वेरी टाइप की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और दूसरा पैरामीटर मैंने पास किया कनेक्शन। जो भी कनेक्शन, अगर आपने यहाँ पे कनेक्शन के नाम CONN रखा है, तो यहाँ पे भी CONN रखना है। जो भी नाम वहां मेंशन किया, सेम नाम आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, और सेम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कोई भी नाम आप कनेक्शन वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हो, वट एवर द नेम यू वांट। तो बेटा जो भी यहाँ पे क्वेरी रन होगी विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन, उसका रिजल्ट ये एम्प में चला जाएगा। नो, एम्प इज नॉट ए ऑर्डिनरी वेरिएबल। एम्प्लॉय ऑटोमेटिकली एक डाटा फ्रेम बन जाएगा, क्योंकि वहां पे एसक्यूएल में क्या है, टेबल पड़ा हुआ है। तो आपको पता है वो ऑर्डिनरी वेरिएबल में वो डाटा नहीं जाएगा, वो ऑटोमेटिकली कहां पे जाएगा, एक डाटा फ्रेम में जाएगा। तो एम्प्लॉय क्या बन जाएगा, एम्प्लॉय विल बी ए न्यू डाटा फ्रेम। मैं इसको रन करता हूं यहाँ पे, एंड यू आर गेटिंग दिस आउटपुट ओवर। इसको चेक करने के लिए लेट्स से मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा डाटाबेस है, ठीक है। यस अजय प्रताप, ये विंडो क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर। ठीक है बेटा, ये विंडो है दैट इज फॉर योर माई एसक्यूएल, जो माई एसक्यूएल वाली विंडो है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू माय टेबल नेम इज employee and values I want to put here, let's say employee number 103, name is let's say Ajay Pratap, ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने मेंशन करना है दैट इज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो लेट्स सी डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 2012 and 1 and 1, ठीक है जी। और लास्ट में है कि सिटी किससे बिलोंग करता है, सो दैट इज आई मेंशन हियर टांडा, ठीक है। सो now you can see that one row has been added into my table, and just to see I use here command select star from table name is clear. So now you see here मैंने अजय प्रताप नाम से मैंने एक रिकॉर्ड इसमें एंटर कर दिया है। ये उसका एम्प्लॉय नंबर है, ये इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, एंड दिस सिटी ही बिलोंग्स टू। सो नाउ आई मूव टू माय प्रोग्राम इन दी जुपिटर नोटबुक। यस, तो मैं अब इसी प्रोग्राम को अब रन करता हूं, द सेम प्रोग्राम। आई रन दिस प्रोग्राम एंड नाउ यू कैन सी हियर कि इस क्वेरी से सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय से ये अजय प्रताप नाम का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे एंटर हो गया। सो दैट इज ओनली पॉसिबल विद डाटाबेस। मैंने ये सिंपलेस्ट प्रोग्राम अभी किया है। क्लियर, हाउ टू हैव ए जुपिटर नोटबुक को पाइथन को यूज करके हम अपने डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो इससे जो भी डाटाबेस में डाटा है उसको इधर फैच कर सकते हैं, एंड लेटर ऑन वी विल स्टडी कि कैसे हम पाइथन से अपना डाटा जो है उसको एक्सपोर्ट करके हम माई एसक्यूएल में लेके जा सकते हैं। क्लियर। सो इस प्रोग्राम के लिए यू रिक्वायर नंबर ऑफ थिंग्स। पहले तो ये है कि आप लोगों के पास जैम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके पास माई एसक्यूएल इन रनिंग स्टेट होना चाहिए, और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि ये माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर इस नाम का पैकेज आप लोगों के सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ये 3 मेजर पॉइंट्स है आप लोगों के लिए करने के लिए। उसके बाद यू रिक्वायर जस्ट इसके अंदर जो नया हमने काम किया है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है,
और एक हमने ये मेथड यूज किया है रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, जिससे हम क्वेरी को रन करके एक वेरिएबल को असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन. दिस कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कनेक्शन स्टैब्लिश होगा तभी यहां से जो क्वेरी आएगी वो इस एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल को असाइन होगी. तो यहां से वो टेबल माई एसक्यूएल क्वेरी का टेबल एक डाटा फ्रेम बन जाएगा. ठीक है. माई एसक्यूएल में हम टेबल वर्ड यूज करते हैं और पाइथन में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डाटा फ्रेम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन फेमिलियर विद द लैंग्वेज. पाइथन में हम टेबल वर्ड यूज नहीं करते, पाइथन में टेबल ऑटोमेटिकली डाटा फ्रेम बन जाता है. तो अब ये एम्प्लॉय नाम का क्या बन गया है? एम्प नाम का एक डाटा फ्रेम बन जाएगा. सो आई हैव पिक्ड अप द सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. स्टिल इसमें आप लोगों को कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? एनी पॉइंट यू हैव ए डाउट कि सर इसको कैसे इंस्टॉल करना है? एनीथिंग यू कैन आस्क नाउ. ठीक है. दिस पार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए. लाइन सिर्फ 2 लाइन का कोड है कनेक्टिविटी के लिए, 2 लाइन सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड हुई है हमारे पास. नथिंग इज न्यू इन दिस वन. जैसे इससे पहले किसी ने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की है? किसी स्टूडेंट ने? एनी स्टूडेंट हु हैज डन डेटाबेस कनेक्टिविटी किसी और लैंग्वेज के साथ की हो, जावा के साथ की हो या एनी अदर लैंग्वेज? ठीक है. जैसे थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जावा पढ़ी हुई है, तो मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने जावा में डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो यू रिक्वायर ह्यूज, उसमें बहुत ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती है. एंड इन पाइथन वी हैव जस्ट यूज्ड 2 न्यू लाइंस टू गो फॉर कनेक्टिविटी. किसी भी लैंग्वेज में सिंपलेस्ट डेटाबेस कनेक्टिविटी जो है, आई थिंक इट इज देयर इन पाइथन इटसेल्फ. तो कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है. एंड लेट अस नाउ मूव टू द पीपीटी आल्सो. दिस वाज द टॉपिक दैट वी हैव स्टार्टेड. टॉपिक क्या था हमारे पास? इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डाटा बिटवीन MySQL एंड पाइथन. ठीक है जी. तो इसके ये वाले स्टेप्स ऑलरेडी हमने कर लिए हैं. ये 7 स्टेप्स हैं जो हमने करना है. ठीक है. पहला स्टेप कौन सा था? स्टार्ट पाइथन. फिर ये पैकेज इंपोर्ट करना है. मैंने आपको बता दिया ये पैकेज कैसे इंपोर्ट करना है. 3 मेथड है हमारे पास. यहाँ इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट से कर सकते हो इंस्टॉल, या मैंने आपको बताया स्पाइडर से इंस्टॉल कर सकते हो, या आप इसको जुपिटर नोटबुक, तीनों से इंस्टॉल कर सकते हो इसको. ठीक है. और मेरे को पता है इस स्टेप में आप लोगों को डिफिकल्टी आएगी. ठीक है. सो अगर आप लोगों को इस स्टेप में किसी भी स्टेप में डिफिकल्टी आती है, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज टेक योर टाइम. हमें ये नहीं है कि सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना है. वी विल टेक 1-2 लेक्चर्स हियर ऑन दिस ओनली. और जिसको डाउट है प्लीज इसको इंप्लीमेंट करके देखो. ये थ्योरेटिकली ये चीजें नहीं इंप्लीमेंट होंगी. तो जहां पे भी आपको डाउट होती है, लेट्स से हमने 50% डाउट्स क्लियर कर दी, 60% क्लियर कर दी, दैट्स ए आई थिंक इज अ ह्यूज अचीवमेंट. मेरे को पता है क्योंकि इंप्लीमेंट ही इसमें से 10 बच्चों ने करना है मैक्सिमम, और उसमें से भी मेरे को लगता है 5-6 को डाउट्स आएगी और 3-4 को क्लियर हो जाएगी. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज इंप्लीमेंट इट, एंड व्हाटएवर द डाउट्स यू फेस शेयर इट इन द क्लास आल्सो. जो भी आती है हम क्लास में डिस्कस करेंगे और एक एक करके इसको विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. इस स्टेप में थोड़ी बहुत डाउट सभी को आएगी, बिकॉज लास्ट ईयर आई हैव डन कनेक्टिविटी. इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है कैसे इंस्टॉलेशन करनी है. ठीक है जी. और ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका प्रोग्राम कभी नहीं आएगा आप लोगों को कि आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा करना है. यहाँ इसका मैक्सिमम यूज होगा प्रोजेक्ट के अंदर. 80% ऑफ द प्रोजेक्ट्स में डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी आप लोगों को करनी पड़ेगी. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज यू डोंट बेसिकली टेक दिस टॉपिक लाइटली. इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से और इंप्लीमेंट करना. सो कमिंग बैक टू द स्टेप्स. पहला स्टेप था पाइथन को स्टार्ट करना, देन इंपोर्ट एंड दिस पैकेज. इस पैकेज को इंस्टॉल करना, क्रिएट और ओपन ए डाटाबेस. ठीक है. तो जब भी हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली डाटाबेस जो है, ठीक है, क्रिएट और ओपन ए डाटाबेस. ये ओपन ए डाटाबेस का क्या मीनिंग है? देखो एक स्टेप आप अपनी कॉपी के को ऊपर और नोट कर लो आप अपने पास. जब भी आप पाइथन का प्रोग्राम यूज करना है, तो अगर आपका पास जो जैम्प है अगर आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी कभी भी. यू आर गेटिंग और नॉट? दोनों सॉफ्टवेयर एक्टिव मोड में होने चाहिए. आपकी पाइथन भी खुली होनी चाहिए
और बैक एंड पे आपका जैम्प भी काम करना चाहिए। मैं अभी आपको जैम्प बताता हूँ जैम्प में क्या होता है। यस, ये जैम्प वाली विंडो दिखाई दे रही है? यस मन्नत? Yes, sir. ठीक है, तो बेटा ये देखो, इसमें अपाचे नाम का सर्वर होता है, माई एसक्यूएल नाम का डेटाबेस होता है। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं, मैंने यहाँ पे कर दिया स्टॉप, तो अब क्या होगा? अब माई एसक्यूएल काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मैं अगर अपना प्रोग्राम रन कर रहा हूं तो ही विल नॉट बी एबल टू हैव एस्टेब्लिश कनेक्शन विद दी, किसके साथ कनेक्शन नहीं होगा? डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ सी दिस। अब मैं उसी प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, यहाँ पे सेम प्रोग्राम मैं जो पहले रन कर रहा था उसी को रन कर रहा हूं। अब मेरे पास कितने एरर आ गए यहाँ पे? यू सी हियर ह्यूज नंबर ऑफ एरर्स आर देयर। वो कौन सा एरर है मेन? लाइक यू सी एट द बॉटम साइड, इंटरफेस एरर 2003 कांट कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर, लोकल होस्ट, ये पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर 3306। 3306 इज द पोर्ट नंबर फॉर माई एसक्यूएल सर्वर। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आई विल नीड टू गो टू माई जैम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, तो इसमें माई एसक्यूएल को क्या करना पड़ेगा? यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इसका पोर्ट नंबर चेक करो। यहाँ पे पोर्ट नंबर क्या है? 3306। ठीक है, नाउ आई गो बैक टू माई प्रोग्राम। अब मैं फिर से अपना प्रोग्राम रन करता हूं। देखो प्रोग्राम में क्या एरर आ रहा था, नोट डाउन द प्रोग्राम। ये देखो बॉटम साइड पे क्या एरर है? कांट कनेक्ट टू माई एसक्यूएल सर्वर ऑन लोकल होस्ट दिस 3306। 3306 इज द पोर्ट नंबर। नाउ वी गो टू द प्रोग्राम। अब मैंने इसको जैम से स्टार्ट कर दिया अपने डेटाबेस को, एंड आई रन दिस कोड, एंड नाउ यू आर एबल टू सी दैट दिस प्रोग्राम इज रनिंग सक्सेसफुली। तो प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपका डेटाबेस भी एक्टिव होना चाहिए, और आपका जो प्रोग्राम है वो तो होना चाहिए। अगर प्रोग्राम के बिना हाउ विल बी एबल टू डू द कनेक्ट। सो टुडे आई हैव पिक द सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, बट थोड़ा सा आप लोगों को इसके ऊपर जब आप काम करोगे, सो देन यू विल बी हैविंग मोर क्लैरिटी। जब तक आप इसको रन नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, सो यू विल नॉट बी हैविंग द कॉन्फिडेंस टू बेसिकली रन दिस सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम। एट लास्ट आप लोगों का कोई भी इशू है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन रेज योर क्वेश्चन आल्सो। और जो हम स्टेप्स कर रहे थे वहां से, तो अभी हमने डिस्कस किया था ये क्रिएट और ओपन ए डेटाबेस। तो आपका डेटाबेस ओपन होना चाहिए, ओपन एंड इस्टेब्लिश द कनेक्शन। तो वो जो हमने लाइन नंबर 4 नंबर, ये जो फोर्थ लाइन है, ओपन एंड इस्टेब्लिश द कनेक्शन टू द डेटाबेस। तो वो हमने इस स्टेप में किया है। ठीक है, ओपन एंड इस्टेब्लिश ए कनेक्शन टू द डेटाबेस। तो इस कोड से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, that is con is equal to this, whatever the code is written over here. So the connection was lost. ठीक है, तो ये हमारे पास है स्टेप नंबर 4। 5 है क्रिएट ए कर्सर। तो कर्सर के ऊपर अभी हमने फोकस नहीं किया है, तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इसको अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स में हम डिस्कस करेंगे कि ये कर्सर का काम क्या होता है। और फिर हमने क्या किया था, रीड एसक्यूएल क्वेरी। तो इसको हमने रीड करके डाटा को, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, एंड देन बेसिकली उसको हमने क्या किया था, एम्प्लॉय में सेव कर लिया था। और कमिट कमांड, नो कमिट कमांड क्या होता है? कमिट कमांड
हमें स्पेशल मेंशन नहीं करनी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली कमिट कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। वी नीड नॉट टू मेंशन द कमिट कमांड। कमिट कमांड का काम होता है कि डाटाबेस में आपने जो भी काम किया है उसको सेव करने के लिए हमारे पास होती है कमिट कमांड। सो दीज आर द 6-7 स्टेप्स दैट वी हैव टू परफॉर्म। और इसके अंदर जो कर्सर वाला पॉइंट आया है, सो वी विल फोकस ऑन दिस पॉइंट इन दी अपकमिंग लेक्चर। ठीक है, सो आई होप सो दैट the points are clear to you. No one is ready to ask any sort of question. कोई क्वेश्चन नहीं है आपका इसके रिलेटेड? कोई एक आधा क्वेश्चन जबरदस्ती पूछ लिया करो मैनिपुलेट करके, दैट सर मेरे को यहाँ पे डाउट है एंड आई हैव अ क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज क्लास ना। टुडे वी हैव 15 and plus 18 students are there and no question is there. So in a new topic, no question. So अब मेरे को डर लग रहा है इसके बाद पढ़ाने के बाद ना, that why there is no question is there. Yes, Ajay Pratap. Yes sir, clear. ठीक है, इसको बेटा इम्प्लीमेंट करना है एंड आई होप सो दैट यू विल डू दिस। ठीक है, क्योंकि डाटाबेस कनेक्टिविटी के अंदर क्या है, दैट इज प्रोजेक्ट्स के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत है एंड और इसका एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर तो जो आप लोगों के जो सीनियर्स हैं, मैंने उसके 10-12 सैंपल पेपर देखे हैं, एक भी सैंपल पेपर में एक भी क्वेश्चन इस कनेक्टिविटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। सो मे बी लास्ट ईयर तो नहीं है, इस बार कोई क्वेश्चन होता है या नहीं, बट कंसेप्ट एंड टॉपिक इज वेरी वेरी रेलेवेंट एंड इट इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और चाहे क्वेश्चन आए ना आए, हमें कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, व्हाई वी शुड डिपेंड अपॉन द मार्क्स और लाइक दैट। क्लियर? So thank you very much. So I hope that tomorrow we will have a 2-3 दिन लगेंगे इसके ऊपर काम करने में and we will continue from this topic only. And whatever your doubts are there, please tomorrow try to come out with practical implementation and try to sort out the issues first and then we will move forward. Thank you, beta. Thank you very much. Thank you, sir.